Hello and good afternoon, everyone. A very warm welcome to all the chartered accountants present here. And thank you all for joining us in this webinar. I, CA Pooja Rathi, am I audible? Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am, you're everyone. A very warm good afternoon. It's too hot in Jodhpur, sir. And I say thank you to all the chartered accountants to be part of this webinar. And a huge welcome to our faculty, Aseem Trivedi, sir. I, CA Pooja Dhoot, Secretary of Jodhpur branch of ICAI, would like to introduce today's topic, that is VCM on Code of Ethics. A much weightage topic for our profession, telling us what we have to do and what we don't have to do, the do's and don'ts of chartered accountants. And it would be presented by our respective renowned faculty, CA Aseem Trivedi, sir. Before introducing him, I would like to invite CA Dhaval, sir, the chairman of Jodhpur branch of ICAI, to come and give the welcome address to him. Hand over to Dhaval, sir. Thank you, Pooja ji. Hello evening to all. I, CA Dhaval Kothari, chairman of Jodhpur branch of CIRC of ICAI, welcome you on today's virtual CP meeting on Code of Ethics. I extend a very warm welcome and greetings to learned speaker of today's VCM, CA Aseem Trivedi ji. I also welcome all managing committee members, all the senior members of the profession, participants and viewers. The code provides a conceptual framework that members are to apply in order to identify, evaluate, and address threats to compliance with the fundamental principles. I hope today's VCM will helpful in our day-to-day work of the profession. Before I conclude, I am happy to share an information with you all that Jodhpur branch has received various discount offers for the members from various vendors of Jodhpur. We will share all information in detail with you all at the earliest. Henry Ford says, anyone who stopped learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. By these words, over to CA Pooja Dhoot, Secretary of Jodhpur branch. That is an exciting news to share, sir. And soon we will introduce to all the members. And now, I'm honored to introduce today's faculty, a very renowned faculty, CA Aseem Trivedi, sir. He is a fellow member of ICAI. He is especially known in the country for his weekly column, Jama Punji, in Hindi National Daily Newspaper, Patrika. He has a vast experience in field of Companies Act, internal audit, accounting and auditing standards, and currently is working in training and implementation of IFRS and New Companies Act 2013. He's an author of following books: Auditing and Assurance, Advanced Auditing and Professional Ethics, Company Law, Accounting Standards, and Ind AS. In fact, we as students have learned audit from CA Aseem Trivedi, sir. It's our honor to be with him today. He is a nationwide faculty for corporate and allied laws. He has conducted many students and members seminar on ICAI platform, has delivered more than 1,200 seminars on ICAI platform. He, as a contributor to ICAI Indore branch, he had hold a post of Treasurer, Secretary, and Vice Chairman of Indore branch of CIRC. In New Delhi, he was a member of Task Force to revise expert advisory opinions in 2000. He was a leader of Task Force to give guidance note on bank audit in 2005. He was co-opted member of CASLB under Accounting Standard Board 2006. He was a trainer of technical standards on auditing under peer review board since 2007. He was a convener of group constituted under IFRS in 2010. He was appointed as a trainer in IFRS in Accounting Standard Board in ICAI in 2010. He was included as an expert and a special invitee to CASLB for Accounting Standard Board and formulation of accounting standards in 2011. And moreover, he was appointed as a group leader in the term of accountancy by Accounting Standard Board. He was a coordinator of Revised Code of Ethics Group. He was a leader in 2018 of such group.
And he was also appointed as a faculty in ESB ICAI for Faculty Development Program in Code of Ethics 2019. And lastly, in 2011, he was also a coordinator in group constituted to prepare FAQs for advertisement on social medias. Hats off to the achievement, sir. And we are really honored and pleasured to have you here on this platform. Handing over to Aseem, sir, and starting the delightful lecture of the day, which is very fruitful and important for all of us. Thank you, Pooja ji, Dhaval bhai, and other managing committee members of Jodhpur. I can't recollect or remember that ever I have been in Jodhpur. Why Jodhpur was just not in my Indian map till now since 20 years. It's strange that from Kashmir to Kanyakumari, from Chennai to Mumbai, everywhere my seminars were there, but I had a list of 1200 seminars, and I found a single seminar of yours in 2021 August. It's only a virtual seminar is there on account of Jodhpur. So this was something very strange for me that I have given seminar in almost every city except Jodhpur. Sir, it's not too late. We can conduct it now. Very good. Now, actually, Jodhpur is quite far from here, and it may possible that due to that face-to-face seminar could not be obtained in Jodhpur. I came to Pali, I came to Udaipur, I had seminar everywhere except Jodhpur. God knows why, but okay, let's start talking on code of ethics. And the topics which are given by Institute to me are definitely of such nature that they are some kind of, I must say, members on research and members on introspection or members on retrospection. That's why also these topics, which is made mandatory now, they have been made mandatory now because of the administrations and the governance, which is looking to us in a very, very different manner. And we all who are the kings of WhatsApp revolutions are still able to understand what exactly government needs from us. So that is a very, very crucial time for our profession to understand the need, which is the need of expectation of society from us. And if we don't understand it, no wonders that we will be vanished in WhatsApp group itself, because we are just there to criticize every step of our leaders rather than to improve ourselves. I'm saying it, I say it very bluntly and very boldly because because today I am going to discuss with you the code of ethics. Ethically saying, so what is ethics? Code of ethics and code of conduct. Ethics cannot be spellbound. Conduct can be spellbound. Hence, our code is not code of conduct. Our code is code of ethics. And ethics has to be viewed on the basis of fundamental principles. There cannot be an exhaustive list of do's and don'ts. You can't have that. On every walk of your professional life, you have to decide, is it right or is it wrong? And when you decide whether it is right or wrong, you need to evaluate your own principles, because nobody can
spellbound the ethics. Ethics is very subjective and it is, I must say, ये बहुत ही ज्यादा जिसको कहना चाहिए कि सब्जेक्टिव मैटर है और हर व्यक्ति का अपना अपना परसेप्शन होता है. नाउ आई जस्ट फॉरगेट, आई एम राजस्थान, आई कैन हैव अ लिबर्टी ऑफ टॉकिंग इन हिंदी. सो कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट में दोनों में क्या अंतर है? तो सर कोड ऑफ कंडक्ट तो मतलब ये है कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है. अगर मैं इसको एग्जॉस्टिवली स्पेल बाउंड कर दूं तो दैट वुड बिकम कोड ऑफ कंडक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव कोड ऑफ कंडक्ट, वी हैव कोड ऑफ एथिक्स. कोड ऑफ एथिक्स मींस do's and don'ts which you have to decide on the parameters which are prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India. Now what is ethics? It is just a compilation of do's and don'ts which are prescribed in the Chartered Accountants Act and regulations. So Chartered Accountant Act and regulation prescribes do's and don'ts, and we are just compiling those do's and don'ts. But let me tell you, these do's and don'ts are not exhaustive. They are illustrated. And by having reference from these illustrations, we need to decide at our own what is right, what is wrong. Let us talk about that. How many volumes of Code of Ethics we have? We have 3 volumes of Code of Ethics. Volume 1 is International Ethical Standards Board's Code Adoption. Volume 2 is Chartered Accountants Act Regulations, Do's and Don'ts. And Volume 3 contains our own members' cases which have been set against the members in course of disciplinary action against the members. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको ये मालूम है कि हमारी एनुअल रिपोर्ट जो अभी आई थी, उस एनुअल रिपोर्ट को अगर आपने देखा हो तो उसके 3 या 4 पन्ने पर इन्होंने डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग्स की डिटेल दी हुई है और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन की मीटिंग्स की डिटेल दी हुई है. आप हैरान रह जाएंगे कि कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने more than 1200 hours उनके दिल्ली बैठने के 1200 घंटे से ज्यादा उन्होंने हमारे द्वारा किए गए मिसकंडक्ट्स को डिस्कस करने में लगाए और more than 1200 hours हमारी काउंसिल के 2 मेंबर्स ने जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में है, उन्होंने भी ये डिसाइड करने में लगाए कि हमारे मेंबर ने मिसकंडक्ट किया है या नहीं किया है. इसके बावजूद हमारे बारे में ये कहा जाना संसद में कि साहब इन लोगों के डिसिप्लिनरी एक्शंस जो होते हैं ये इन्हीं के हाथ में है, तो इनको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन किया जाए. थोड़ा सा दुख हुआ सभी को, क्योंकि अगर हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें और उसमें ये देखें कि कितने मेंबर्स को उन्होंने उन मिसकंडक्ट्स में डिबार किया है, तो आई मस्ट टेल यू आवर फिगर्स आर द ग्रेटेस्ट फिगर. हालांकि ये कोई गर्व करने लायक बात नहीं है कि हमारे 239 मेंबर के अगेंस्ट में हमने डिसिप्लिनरी एक्शन लास्ट 1 ईयर में लिया. गर्व करने वाली बात नहीं है, बट गर्व करने वाली ये बात तो है कि हम एक्शन ले रहे हैं. अगर मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करूं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कितने डॉक्टर्स को डिबार किया, अगर हम उनसे स्टेटिस्टिक्स मांगने जाएंगे तो उस स्टेटिस्टिक्स में आपको एक भी नहीं मिलेगा. लाइफ टाइम बैन कितने लोगों को किया है बताएं. हम गिना सकते हैं कि हमने लाइफ टाइम बैन कितने लोगों को किया है. अच्छा, जब कोड ऑफ एथिक्स को मैंडेटरीली सीपीआरस में डाला गया तो कुछ लोगों ने कहा क्या कर रहे हैं, कोड ऑफ एथिक्स को सीपीआरस में क्यों डाल रहे हैं? भाई साहब, जब आपके 250 केस में साल भर के डिसिप्लिनरी कमेटी में आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मेंबर्स को मालूम ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है.
तो ये 2 घंटे जो मैंडेटरी किए गए हैं ये तो बहुत जरूरी। अभी लास्ट वीक आई वाज इन रायपुर डिस्कसिंग कारो 2020 फॉर 4 hours. Day before yesterday I was in Bhopal. I was again discussing Karo for 4 hours. Have you ever gone through the Karo in detail, and did you find out that what expectation and what kind of vigilance they want from us? And if we are unable to fulfill that particular expectation, this expectation gap, which was just reflected in the speech of Nirmala Sitharaman, will definitely going to be more bigger. And if this expectation gap is going to be bigger and bigger, it will be very difficult for us to stand in a monopolistic condition as we are today. So I request everyone that whatever reserved kind of CPE seminars made mandatory, because we all were free to have seminars. So we were always reading for our client in form of GST and direct taxes. For GST, we have read out all the punctuation, even a comma if inserted in a particular GST circular, we will have a seminar for that. But whatever inserted 13 years back in our Companies Act, we still not aware about it. So that is a very, very problematic situation. That's why CPE committee decided that there must be reservation for code of ethics, and there must be reservation for standards on auditing and auditing topics also. So that is requirement, because the expectation gap is increasing day by day, day by day, day by day, day by day. And who else is going to fill that gap other than us? No one, not at all. Because whatever done by our predecessors, our torch bearers in last 70 years, 60, 70 years is phenomenal, I must say. Having monopolistic condition in a country continuously for 60, 65, 70 years is not a simple kind of gesture. It requires hell of efforts which have been tirelessly done by our members, be it is council members, be it is central council members or regional council members or our branch committee members, because it is not easy to have this monopolistic situation in such a long way in such a diversified country with so many states. That's a commendable thing, and we have a confidence that we will go ahead. Nobody else can replace us in near future also, because we will definitely going to hit it. But what I'm talking about is very important here now. The code of ethics, we have part one. Part one code of ethics is nothing but international ethical standard code. Let me tell you what is the requirement of code of ethics. See, we have International Federation of Accountant as an international body. That International Federation of Accountant, of which ICAI is also member, and we have so many partnering countries there in IFAC, that is International Federation of Accountant. International Federation of Accountant takes care of various bodies within itself, be it is IASB, that is International Accounting Standard Board, be it is IAASB, that is International Auditing and Assurance Standard Board, be it is that is ISBA, that is International Ethical Standard Board. They are issuing standards. As we are under G20 nations, G20 nations have came into a treaty that all these countries will follow whatever rules and regulations will be made for the accountants by ISBA or by IFAC, that need to be followed by all of us. So it is our binding to follow the international standards. Now, the problem is with India is that before having international code, we had our own local code. Since 1965, we are having our own code. हमारा code 1965 से. अब हमारा कोड जो 1965 से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के डूज एंड डोंट्स को हमने साथ में लेकर के बनाया था, और एकदम से ये लोग आ गए 2006 में एक कोड लेके और कहा 2006 में कि आप इसको लगाओ। तो हमने 2009 में डिसाइड किया कि ये जो इंटरनेशनल कोड होता है इसको हम काउंसिल गाइडलाइंस की तरह लगाएंगे। फिर
इन्होंने इंटरनेशनल कोड बदल दिया 2018 में, हम भी बदल कर लेके आ गए इंटरनेशनल गाइडलाइंस। अब ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो है वो हमारे कोड का हिस्सा है एज अ पार्ट फर्स्ट ऑफ अवर कोड ऑफ एथिक्स। पार्ट फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे, सो यू विल फाइंड 4 पार्ट्स। पार्ट 1 इज जनरल फ्रेमवर्क, part 2 is professional accountant in practice, part 3 is professional accountant in public practice, and part 4 is independent standard. So part 1 जो है वो जनरल फ्रेमवर्क बताता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बताता है, जिसमें वो बताते हैं कि एथिक्स के लिए आपके जो 5 पिलर्स हैं जिनको हमने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिया ही हुआ है पहले से। So we had those 5 standards with us, and those 5 were integrity, objectivity, independence, then confidentiality, professional competence and due care, professional behavior. We had all. So those were given in conceptual framework and all. So these all conceptual framework is part 1. Part 2 is our own code of ethics, which is known as chartered accountant, the do's and don'ts, which are described under the Chartered Accountant Act 1949 and regulations thereunder. And part 3rd, as I told you, these were the case law, case studies against our case, disciplinary cases against our members. Now we have 5 pillars of code of ethics, and these 5 pillars are integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behavior. What exactly the integrity is? Because the whole second volume, if you go to the second volume of Code of Ethics, this whole Code of Ethics volume 2 includes all these. Every point, you just point out that ये वाला particular provision किस particular pillar को address करता है। आपको 100% कोई ना कोई पिलर आपको मिलेगा उस पर्टिकुलर प्रोविजन के पीछे खड़ा हुआ जो वॉल्यूम 2 के अंदर। सो वॉल्यूम 1 इन 5 पिलर्स को डिस्क्राइब कर रहा है और वॉल्यूम 2 उसको इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई कर। सो इफ वी फॉलो वॉल्यूम 2, ऑटोमेटिकली मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम 1 वी फॉलो। सो देयर इज नो नीड टू फॉलो दीज 3 बुक्स differently. Third book is the cases, but first book and second book we need not to follow them separately. If we follow the second one, automatically we are going to follow the first one, because most of the things which are described in part 1 have already been included in part 2. So part 2 is more important for us because that is strictly defined in Chartered Accountants Act 1949. So we need to more concentrate on part 2 rather than part 1. So there are 5 pillars. I am going to explain these 5 pillars to you. Integrity. It requires that the chartered accountant in practice should be straightforward, honest in all professional and business relationship. Now, if a client comes to us, एक client आया, आते ही उसने कहा यंग मेंबर्स से मैं बात कर रहा हूँ। यंग मेंबर्स के पास एक क्लाइंट आता है और कहता है सर मेरी बैलेंस शीट आपको साइन करनी, आप अपनी फीस बताइए। हमारा यंगस्टर बोलता है साहब मैं बैलेंस शीट आपकी साइन कर दूंगा, ये बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपकी ऑडिट कर दूंगा, बट आई विल हैव माय फीस एज 10,000 रुपीज। सामने वाला बोलता है नो, जस्ट हैव 15,000 रुपीज, आप साइन दीजिए। पहली बात, यंगस्टर्स से मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास नए क्लाइंट्स आते हैं और ये प्रैक्टिकली हुआ है, जिसको मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वो बंदे ने 15,000 करके उस पर्टिकुलर केस को ले लिया, उसका ऑडिट कर दिया, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना दी, उसका सब कुछ कर दिया, एवरीथिंग डन। 15,000 रुपीज की फीस भी उसको लगी। 5 से 6 दिन लगे उस ऑडिट को कंप्लीट। बॉस थोड़े दिन बाद पता चला
कि जो फेक इनवॉइसिंग जीएसटी का रैकेट, उस फेक इनवॉइसिंग के रैकेट में वो कंपनी फेक टर्नओवर बुक करने वाली एक कंपनी थी जो इंटरमीडिएरी कंपनी के रूप में काम कर रही थी। और जो फेक जीएसटी की इनवॉइसिंग के रैकेट थे, उसमें वो भाई साहब ने अपने प्रोफेशनल कैरियर का उद्घाटन ही जो है उस पर्टिकुलर बैलेंस शीट से किया और अभी फंसे हुए। नाउ इंपॉर्टेंट इज हाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड यू वर, हाउ ऑनेस्ट यू वर, how sincere you were while accepting that audit assignment. Now every forum asking him, where are the KYC document of this fellow? क्या आपने KYC की थी? अगर आप KYC करके इसके डायरेक्टर्स के नाम गूगल पे भी टाइप कर देते तो आपको पता चल जाता कि इसके डायरेक्टर कितनी डिफंक्ट कंपनीज में डायरेक्टर थे। गूगल चिल्ला के कह रहा है जी एक डायरेक्टर का नाम लिखूं, मैं गूगल पूरा देने को तैयार है कि ये डायरेक्टर की जन्म कुंडली, और आपने बिना केवाईसी के वो ऑडिट कर डाला। दूसरी बात, उसमें कुछ एंट्रीज आई थी जिनको इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की तरह बताया गया। वो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट और कुछ भी नहीं थे, वो हवाला के पैसे। अब वो जो लोन थे उनके कोई एग्रीमेंट नहीं थे, और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कारो चीख चीख के कह रही थी कि टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल बढ़िया है जी, लोन वोन कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कैसे मतलब आप ऑडिट करेंगे? सो इंटीग्रिटी इज इंपॉर्टेंट। Unless and until we are not straightforward, honest and sincere in all professional fronts, we cannot expect anything from society. आप सोसाइटी से बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो। हम सोसाइटी को जो दे रहे हैं वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं और वहां खोल देने वाला है। परसों की बात मैं आपको बता रहा हूं। परसों मेरे पास एक केस आया है जिसके अंदर मेंबर ने, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेंबर ने माओ कारो में रिपोर्ट दी है। कारो 2003 में आ चुका है, मेंबर ने 2020 में माओ कारो की रिपोर्ट अटैच करके भेजी है। भाई साहब, रिपोर्ट में डबल एएसबी चेयरमैन संजीव सिंगल जी, day before yesterday he was in Indore and he was talking about that particular माओ कारो। Now अब आप ये सोचिए कि आज 2019-20 में अगर कोई माओ कारो की रिपोर्ट दे रहा है, तो यार फिर अगर कोई संसद में खड़ा होकर हमारे प्रोफेशन के लिए कुछ गलत बोलता है तो फिर गुस्सा करके जंतर मंतर पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं आंखें मीच लेने से उस पे पर्दा नहीं डल जाएगा। अब आप ऑब्जेक्टिविटी पाइए। नॉट टू कॉम्प्रोमाइज विद प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, conflict of interest or undue influence of others. Varied cases I'm going to discuss on this objectivity, hence I'm not taking it here. Professional competence and due care, इसकी बात तो मैं क्या करूं आपसे। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस तो ठीक है, ड्यू केयर तो रखे आदमी। आज की तारीख में, yesterday, day before yesterday, when I was in Bhopal, I was talking and I have explained them with a form of audit report which I have received. क्या हमें मालूम है कि हमारे ऊपर कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? एक ऑडिट रिपोर्ट आप साइन करते हैं, एक सीसीटीवी आरओसी का लगा हुआ है, एक सीसीटीवी जीएसटी का लगा हुआ है, एक सीसीटीवी इनकम टैक्स का लगा हुआ है, और इन तीनों से बच जाए तो हमारा एफआरआरबी भी लगा हुआ है, दैट इज एफआरआरबी। और उसके बाद एक सीसीटीवी इम्प्लांट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। और अब आ रहा है AQMM मॉडल। तो ये तो हमको करना ही पड़ेगा। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर तो रखनी पड़ेगी। बिना ड्यू केयर के कैसे काम करेंगे सर? लापरवाही के नमूने में आपके सामने पेश करूंगा अभी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो हमें पता चलेगा कि ये 2 घंटे का कोड ऑफ एथिक्स क्यों जरूरी है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे मेंबर की कारो रिपोर्ट और हमारे मेंबर की
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ही मैच नहीं हो रही। हमारा मेंबर की कारो रिपोर्ट लिखती है सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज रेगुलरली डिपॉजिटेड है इन टाइम, सालों से लिख रही है, और सालों से उसकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के एनेक्सर में जा रहा है कि टीडीएस टाइमली डिपॉजिटेड नहीं है, पीएफ टाइमली डिपॉजिटेड नहीं है, वो एनेक्सर में जा रहा है। अब आप ही बताइए, मेरा ही मेंबर, एक ही मेंबर दोनों रिपोर्ट साइन कर रहा है, एक रिपोर्ट में वो लिखता है स्टैट्यूटरी ड्यूज हैव बीन रेगुलरली पेड, और दूसरी रिपोर्ट में वो लिखता है दैट स्टैट्यूटरी ड्यूज डिलेड। अब हमें पूछा जाता है, इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है उसके पास दोनों रिपोर्ट होती है, और वो इनकम टैक्स ऑफिसर चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक नोटिस भेज रहा है और बोल रहा है मैं आपके ऑडिट को डिसएग्री करता हूं कि आपका टैक्स ऑडिट सही है, और ये जो आपने 3CA लगा रखी है, ये 3CA की रिपोर्ट कोई मैं नहीं मानता, या तो 3C भी होनी चाहिए, क्योंकि इसका तो ऑडिट ही ढंग से नहीं हुआ। अब वो उनके नॉलेज के हिसाब से कुछ भी बोलते रहे, फिर हम उनसे फाइट भी कर लेंगे ऐसा कैसे बोल रहे हो, पर वो नहीं, उन्होंने नोटिस दिया है बाकायदा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आया है कि आए और मुझे एक्सप्लेन करें कि इन दोनों रिपोर्ट में से कौन सी रिपोर्ट सही है। दूसरी रिपोर्ट आरओसी से आई, आपकी कारो कहती है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो हैं हुए ही नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, और आप ही के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नोट्स टू द अकाउंट्स चीख चीख के कह रहा है कि ये रहे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। एक और नोटिस आया, आपके मेन रिपोर्ट कहती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाइड विथ, लेकिन लीव एनकेशमेंट का प्रोविजन हमें बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिख रहा है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 कैसे कंप्लाइड विथ। एक और नोटिस आया, आपने कहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 कंप्लाइड विथ है, ग्रेच्युटी का ढेर सारा प्रोविजन बना के रखा हुआ है, लेकिन ग्रेच्युटी की फंडिंग तो बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रही है। ना तो आपने LIC से ग्रुप ग्रेच्युटी प्लान लिया, ना ही आपके कोई फंड प्लान इन्वेस्टमेंट हमको दिख रहे हैं, ना ही हमें एक्चुरियल वैल्यूएशन दिख रहा है। तो जब एक्चुरियल वैल्यूएशन नहीं है, प्लान इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर ये ग्रेच्युटी के प्रोविजन बनाने का मतलब क्या है। आज कल अगर आपका एम्प्लॉय चला जाएगा तो उसको पैसे दोगे कहां से, फिक्स एसेट बैच के पैसे दोगे। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 कह रहा है फंडिंग करो, फंडिंग कहां है। सर आप नोटिसेस की क्वालिटी तो देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वालिटी को क्वेश्चन करते हुए नोटिसेस आ रहे हैं आरओसी से। आरओसी कह रहा है नोट्स टू द अकाउंट्स में आप कह रहे हो इंटेंजिबल एसेट्स आर वैल्यूड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इस बैलेंस शीट में तो एक भी इंटेंजिबल नहीं दिख रही। तो या तो बैलेंस शीट में इंटेंजिबल नहीं है, या फिर ये इंटेंजिबल की पॉलिसी गलत है। अब हम कैसे बताएं कि उसको वो 2 पन्ने जो हमारे स्टैंडर्ड नोट्स टू द अकाउंट्स में चेप दिया हमने सब दूर, और वो भी उठा के चेपे कहां से, कोई इंटरनेशनल को किसी का। अब बताओ, आप इन्फोसिस के कारों के 2 पन्ने टाइप करवा के अगर आप किसी नॉर्मल कंपनी पे लगवा दोगे तो यही होगा। अब वो कारो बोल रही है ऑडिट कमेटी, उस एंटिटी पे ऑडिट कमेटी नहीं लग रही, आप ऑडिट कमेटी रिपोर्ट कर रहे हो। ढेर सारे एग्जांपल्स है सर। They all says that there is no care is being taken. Gone are the days when CA final article performs the audit and chartered accountant signs it blindly. Gone are the days. CA final student को खुद समझ में नहीं आ रहा है अभी कि उसको करना क्या है, वो हमारा ऑडिट क्या करेगा। उसको उसकी एग्जाम देनी, उसको उसके एग्जाम क्लियर कर, अभी ऑडिट हम ही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। Confidentiality and professional behavior, I'll come to that both when I'm explaining that. But the whole ethics, और ये ethics के जितने भी आपके केसेस हैं, ये जितने केसेस मैं आज बताऊंगा, ये केसेस सिर्फ इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हमने जो प्रोफेशनल डिसीजन लिया वो नीड की बेसिस पे लिया कि ग्रीड की बेसिस पे लिया। पहला तो मिसकंडक्ट वही हो जाता है जब हम अपना कोई भी प्रोफेशनल डिसीजन ग्रीड की बेसिस पे ले रहे हैं। दूसरा, हमने प्रोफेशनल डिसीजन सिंसियरली लिया या कैजुअली लिया। दूसरा मिसकंडक्ट हमसे जो मैक्सिमम जगह हो रहा है वो हमारा कैजुअल एटीट्यूड है।
और तीसरा प्रोफेशनल जजमेंट जो रेयरली मिलता है लेकिन कई जगह पे मिलता है, that decision which you have taken was rational or was it irrational decision? If we start taking decision on the basis of need, if we start taking decision sincerely, if we start taking decision rationally, I can bet you, no single clause of the code of ethics will going to affect. Not a single clause. If we started doing all these three things there in our office. Let's start with my own capital, Bhopal. I will take you around India with all the cases, and we will have discussion on code of ethics by having these cases. अब आप देखिए, हमारे भोपाल के एक महान चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनका क्या, ये मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट्सएप पे क्रांति लाने से कुछ नहीं होगा, है ना। ICAI आ रहा है और ये इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं किया और सारे इकट्ठे हो जाओ जंतर मंतर पे, एक ऑफिस में आर्टिकल सहित जितने लोग मिला लो उतने भी इकट्ठे नहीं हो पाए, और आप कह रहे हैं जी आंदोलन कर रहे हैं। ना करें, ये व्हाट्सएप क्रांति है, यहाँ सिर्फ अंगूठे चलते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। जो करना है वो यही करना है। आप देखिए, अब ऐसे अगर काम होंगे तो कोई भी चिल्लाएगा साहब। एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्टेट गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर बनाया स्टेट कोऑर्डिनेटर, कि साहब आप मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर बन जाओ हमारे सेडमेप नाम की इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। अब गवर्नमेंट ने कहा कि देखो जी, आप कोऑर्डिनेटर बन रहे हो तो आप ही को हम पूरे फंड्स, जो बजटेड एलोकेटेड फंड्स होंगे वो हम आपको देंगे, और आपको बाकी सारे सेंटर्स को फीड करना है। तो रिसोर्सेस पूरे जो है वो आपके पास रहेंगे क्योंकि आप स्टेट कोऑर्डिनेटर। तो हमें आपकी एक फर्म चाहिए जिस फर्म को हम पूरा पैसा ट्रांसफर करें। हमारा भाई प्रोप्राइटर था, हमारे भाई ने एक MOU साइन किया सेडमेप के साथ। सेडमेप ने उसको बोला कि आप एक राज्य समन्वयक सेडमेप प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलो जिसके आप प्रोप्राइटर बन जाओ। हमारा भाई ने राज्य समन्वयक सेडमेप की प्रोप्राइटरशिप कंसर्न खोल ली और उसका प्रोप्राइटर भी बन गया। सुनते जाइए आप, बैंक अकाउंट खुल गया, सर्विसेज दी गई, पेमेंट रिसीव किए गए। अब जिस भाई को सेडमेप का समन्वयक बनाया गया था, इनका एक कॉम्पिटिटर भी था जिसको वो समन्वयक जो बन नहीं पाया, उसकी सेटिंग नहीं जमी होगी, इनकी सेटिंग जम गई। उन्होंने उठा के इनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च कर दी कि ही हैड मिसअप्रोप्रिएटेड मनी। One chartered accountant filed FIR against another chartered accountant that on the post of this Rajya Samanvayak SEDMAP, he misappropriated the money. Investigation went on and FIR has been found baseless and clean chit given back court to that SEDMAP Samanvayak. But somehow this whole case has been popped up in the news. And then Board of Discipline and Disciplinary Committee have taken cognizance of the case that what exactly happened. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना था कि साहब मुझे तो क्लीन चिट मिल गई, तो मैंने तो कोई फ्रॉड ही नहीं किया। इंस्टीट्यूट का कहना था भाई साहब वो क्लीन चिट मिल गई, फ्रॉड हो गया, वो तो बात की बात। पहले तो आप ये बताओ कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोप्राइटरशिप फर्म, हाउ डेयर यू open another proprietary firm in which you are a proprietor and you are working for government? He said, I am just a coordinator in professional capacity. Institute has objected on the same, that you are not supposed to open a separate proprietorship firm because you are chartered accountant right now. So when you are chartered accountant right now, how did you open another firm? And if you open another firm, it is purely violation of regulation 190A. Because you have not obtained a permission from council to
have a separate proprietorship firm. आपको करना था तो आप काउंसिल के पास आते, काउंसिल से गाइडेंस लेते कि मुझे ये राज्य समन्वयक मिल रहा है and they want me to open a proprietorship account, then we could have suggested you something different. अगर इस तरीके से हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन करने को दे दी तो इस देश के इतने सारे राज्यों की, इतनी सारी गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं और वो सारी स्कीम्स के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे उन पैसों को इधर उधर करने के लिए. So for that, institute has taken a strict action against this particular fellow and they have been awarded a penalty to this particular fellow. They have debarred him from practicing and all. Another Baddi, Solan, Himachal Pradesh, 2014. Respondent received appointment as tax audit of a firm. He posted letter of communication on 20th September 2013. Letter received to the predecessor on 23rd September 2013. Subsequently, it is noted that audit report had been issued with a date on 19th September. This is very common, be it is Jodhpur, be it is Indore, be it is Jaipur, anywhere. Communicating with the predecessor. जितनी कंप्लेंट्स इंस्टीट्यूट के पास इस पर्टिकुलर क्लॉज नंबर 8 के लिए आती है, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा कंप्लेंट किसी पर्टिकुलर क्लॉज के लिए होती होगी, क्योंकि हमारा क्लाइंट खो जाने का जो दुख है वो हमारे लिए परम दुख है. मतलब उससे बड़ा दुख हमारे लिए दूसरा कोई है नहीं एग्जैक्टली. और क्लाइंट चला गया हमारे पास से वो ठीक है, लेकिन हमारे पास से जिसके पास गया उसने हमें कम्युनिकेट तक नहीं किया, ये और बड़ा दुख है. तो हम बाकायदा उसका कम्युनिकेशन, और सही भी है, प्रेडिसेसर हैज टू कम्युनिकेट, the successor has to communicate to the predecessor. But now the problem is clause number 8 like क्यों लाते हो यार ये ऐसे प्रोविजन कोड ऑफ इथिक्स में? क्या जरूरत है इन प्रोविजंस की? क्यों चाहिए एनओसी? क्लाइंट को जिससे चाहेगा उससे ऑडिट करवा लेगा. आप क्यों फोर्सफुली बोल रहे हो कि इनसे करवाओ, फिर वो उनको बोलेगा, फिर वो एनओसी देता नहीं है. इजी करो, प्रोफेशन को इजी करो. सर मैं इजी करना चाहता हूं, हम भी इजी करना चाहते, लेकिन आप प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी सुनिए. अब प्रॉब्लम ये है कि प्रीवियस ऑडिटर क्यों गया, ये कारण जानना बहुत जरूरी है सर. Why previous auditor is resigning or retiring, ये जानना बहुत जरूरी है. प्रेडिसेसर को हटा करके हमें ऑडिटर अपॉइंट किया गया, कोई तो रीजन होगा ऑडिटर के जाने का, या तो रोटेशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है. लेटर लिखने में क्या दिक्कत है कि सर I have been approached by this company to become an auditor. I am accepting the appointment. If you have professional or other reason for me not to accept the appointment, kindly let me know. Within these days, if your answer doesn't come to me within these days, I will presume that you have no objection. And the same thing has to be followed under clause number 8 for every type of engagement. Let me tell you, it is required for every type of engagement, not only tax audit or company audit. It requires for everything. Now, in this particular case, what happened? He just carelessly done this. क्या ठीक है, एनओसी तो है, भेज दो. लेटर पोस्ट कर दिया 20 सितंबर को, जबकि आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर चुके थे 19. आपको ये कहा गया कि जब आप एक्सेप्ट करें तो एक्सेप्ट करने से पहले प्रेडिसेसर को कम्युनिकेट करें, और जब तक प्रेडिसेसर का जवाब ना आ जाए या जब तक प्रेडिसेसर का दिया हुआ टाइम ना निकल जाए तब तक आप अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ना करें. भाई ने तो साइन कर दी, 19 सितंबर को साइन हो गए, 20 सितंबर को पोस्ट करता है लेटर, 23rd को सामने वाले को मिलता है, और सामने वाला तब तक क्लाइंट से डील कर चुका होता है.
और क्लाइंट कहता है कि मेरी तो रिपोर्ट साइन हो गई 19 सितंबर को, सर आप कहाँ लगे? अब वो पहुंचता है डिसिप्लिनरी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास, डिसिप्लिनरी कमेटी के पास, कि साहब, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास पहुंचता है और कहता है साहब मुझे कम्युनिकेट ही नहीं किया गया। और अगर उसने ये बोल दिया कि मुझे कम्युनिकेट नहीं किया गया और मेरी अनडिस्प्यूटेड फीस पेंडिंग है, तो बॉस, अगर उसकी अनडिस्प्यूटेड फीस पेंडिंग है और आपने उससे कम्युनिकेट नहीं किया, तो अब आप मेजर ऑफेंस में शिफ्ट हो जाओगे माइनर ऑफेंस से। You will be guilty of professional misconduct under clause number 1 of the part 2 of the second schedule, which is a major offense, और डीसी लग जाएगी। बीओडी से बरी होकर डीसी में घुस जाएंगे हम, क्योंकि प्रीवियस ऑडिटर की फीस जो है वो ड्यू फीस है, अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है, जिसका पेमेंट नहीं हुआ है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल केस स्टडी बता रहा हूँ, पिछले ही साल की केस था, इंदौर का ही केस था। दो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे पास आए और बोले सर यार अब ये मुसीबत से निकालो, ये मुसीबत हो गई हमारे साथ। आई टोल्ड क्या हुआ? बोले यार ये एक बहुत ही वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 70 साल के हैं, ये हमारे पीछे पड़ गए। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, ये क्यों तुम्हारे पीछे पड़ गए? बोले सर यार हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा टैक्स ऑडिट करो, ये उसका टैक्स ऑडिट करते थे। हमने कहा हम कर लेंगे, लेकिन हम पहले उनसे पूछ लें। ये हमको एक दिन शादी में मिले, उस दिन शादी में रात को हमने इनसे कहा कि आपका एक क्लाइंट हमारे पास आया है, तो इन्होंने कहा बेटा तुम तो कर लो, मैं तो वैसे भी छोड़ने वाला था, तुम तो कर लो, पर देख लेना मेरी फीस पेमेंट हो जाए, उसकी जो भी बची हुई है, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तुम कर लो। बोले सर फेस टू फेस बात हुई, उन्होंने बोला कर लो, हमने ले लिया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? ही सेड सर थोड़े दिन बाद जब हमने ऑडिट कंप्लीट कर दिया, उसके बाद इनका लेटर मेरे पास आया कि तुमने हमसे एनओसी नहीं मांगा। मैंने कहा सर मैं आपसे मिला, शादी में मिला, हम दोनों मिले, आपने ही कहा। बोले मैंने शादी में तुमसे जो बोला था तुमने वो नहीं किया, मैंने तुमसे कहा था कि अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस का पेमेंट कराओ। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों बोलते हैं सर हमने उनकी फीस का पेमेंट करवा दिया, चेक मैंने अपने हाथ से देके और डिलीवर करवाया था इनके ऑफिस। उनसे पूछा कि सर आपको चेक डिलीवर करवाया था, मेरा ऑफिस बॉय आपको चेक आके दे गया था। उन चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना है वो चेक डिसऑनर। अब जब ये वापस क्लाइंट के पास गए और क्लाइंट को बोला कि क्या बेवकूफ आदमी हो तुम, तुमने चेक डिसऑनर करवा दिया, अब वो हमारे पीछे पड़ गए। वो बोलता है सर मैं भी क्या करूं, मेरे अकाउंटेंट ने गलती से एक ऐसे अकाउंट का चेक दे दिया जिसकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो चेक डोरमेंट अकाउंट का था, वो डोरमेंट अकाउंट का चेक जो है वो डिसऑनर। अब वो क्लाइंट सही बोल रहा था कि ये दोनों सही बोल रहे थे कि वो मेंबर सही बोल रहे थे? मेंबर का ऑब्जेक्शन अपने पास बिल्कुल क्लियर था कि मैं हर्ट हुआ हूं, मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे को एक चेक दिया गया, वो चेक डिसऑनर हो गया। 70 साल की उम्र में अगर ये 25-30 साल के बच्चे मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो मैं इनका रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं डीसी में जाऊंगा। वो डीसी में गए और डीसी के लिए एप्लीकेशन लिखकर ड्राफ्ट करके वो हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स के पास गए और उनको जाके बोला कि मैं डीसी में जा रहा हूँ। तब सेंट्रल काउंसिल मेंबर ने उनको बुलाया, उन दोनों को भी बुलाया, सारी सिचुएशन सामने रखी। तब वो बुजुर्ग ने कहा मैं एक केस पे डीसी में नहीं जाऊंगा अगर ये 21,000 रुपए उस गौशाला को दान कर देंगे जिस गौशाला में मैं ट्रस्टी हूँ। तो साहब गौशाला को 21,000 रुपए का दान किया। तब उन्होंने बोला कि अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि कई बार गलतियां किसी की भी नहीं होती है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम फंस जाते हैं। तो क्यों इसमें फंसना? अब तो इसको और इजी कर दिया ना साहब, अब तो उन्होंने कह दिया कि लास्ट रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आप भेज दीजिए इंटीमेशन। अगर आप लास्ट रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर इंटीमेशन भेज देते हैं देन थिंग्स आर ओवर, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, उतने दिन रुक जाइए जितने दिन आप रुक सकते हैं। 2 से 3 दिन का काम होता है ईमेल मिलने के बाद। तो ईमेल लास्ट रजिस्टर्ड एड्रेस विद आईसीआई पर हम भेजें और अगर उसका रिस्पॉन्स, अच्छा एक
वो ईमेल भेजने के बाद मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि वो ईमेल उनको मिल गई। आप मेल भेजिए और कॉल भी कर दीजिए कि सर आपको मेल मिल गई, आप बस इतना लिख दीजिए कि मेल रिसीव, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर आप आराम से जवाब देते रहे। मेल रिसीव्ड होना है, उन्होंने हमें रिवर्ट कर दिया है कि मुझे मेल रिसीव हो गई है, बात खत्म हो गई, उसके बाद हमको कुछ नहीं देखना। लेकिन ये क्लॉज बड़ा खतरनाक, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस क्लॉज। और मैं आपको जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बिल्कुल डेली जो जिन केसेस को मैं हैंडल कर रहा हूँ कोड ऑफ एथिक्स के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रोज आ रहे हैं सामने। तो ये केसेस जो हैं वो कैसे पॉपअप हो जाते हैं हमें समझ में नहीं आता है। कई बार हम प्रैक्टिस में ड्यू केयर नहीं रखते हैं, तो केयरलेसनेस के कारण जो केसेस आते हैं वो ऐसे आते हैं। ये है हमारे गुड़गांव वाले भाई साहब। 2016 में one fine day, a proposal for appointment to become company auditor of a company received to a chartered accountant firm. Company explained to the auditor that predecessor auditor has expressed his inability to conduct the audit. Company assured the incoming auditor that they will collect the no objection certificate and do all the formalities. Later on, before signing audit report, it was discovered by the incoming auditor that no formality have been complied with by the client. अब क्लाइंट भी बहुत जोरदार आदमी होता है, अरे सर मैं सब करवा दूं। यंगस्टर्स को मैं बता दूं, ये जो क्लाइंट होता है ना, इस क्लाइंट के जो सीएफओ बेटा होता है ना, जो हमारा ही भाई होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उससे थोड़ा सा बच के रहना। वो आपको कहता है, हमारे यंगस्टर्स जितने भी हैं उनको जब काम पे रखता है तो बोलता है ये सब फॉर्मेलिटी मैं करा लूंगा, 25 साल से मैं ऑडिट करवा रहा हूँ, आप इन फॉर्मेलिटी की टेंशन मत लो, आप तो ऑडिट शुरू करो, ये सब मैं करवा के रख लेता हूँ। तो ये जो हमारे भाई लोग होते हैं ना, मैं सब करवा के रख लेता हूँ। आपको ऑडिट शुरू ही नहीं करना है जब तक ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर से एक केस स्टडी निकाल के दे रहा हूँ आपको यहीं से, ये तो अपनी जगह है ही, मैं इसमें से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल निकाल के दे रहा हूँ आपको कि आपको कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का केस अभी अभी आया, कैजुअल अप्रोच की बात बता रहा हूं मैं, कैजुअल अप्रोच का बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। 30 सितंबर निकल गई, एजीएम की डेट भी निकल गई। नॉर्मली जो प्रैक्टिस चलती है, यहाँ ठीक है अभी तो रिटर्न भरने तक का टाइम है, तब तक तो एजीएम भी बता देंगे और बैलेंस शीट भी साइन हो ही जाएगी और रिपोर्ट की डेट भी वही डली जाएगी और डायरेक्टर रिपोर्ट डेट भी डली जाएगी, मतलब वो सारी फॉर्मेलिटी हो जाएगी, उसमें क्या है। एक दिन क्लाइंट और एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच में कोई जबरदस्त अनबन हो गई किसी पर्टिकुलर फीस को लेकर, ताबड़तोड़ रेजिग्नेशन दे दिया ऑडिटर, बिना ये सोचे कि ऑडिट उसने अभी कंप्लीट नहीं किया है इस साल का, ताबड़तोड़ उसने जो है रेजिग्नेशन दे दिया। और भाई साहब रेजिग्नेशन देने के 30 दिन के अंदर अंदर उसने एडीटी 3 भी फाइल कर दिया और उसमें रीजन लिख दिया कि ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मैं रिजाइन कर। नया चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट हो गया, नए चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपॉइंटमेंट ले भी लिया, नए चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कर दिया, जनरल मीटिंग ने नए चार्टर्ड अकाउंटेंट का अप्रूवल भी कर दिया। नया चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जब ये लोग गए और कहा कि सर ऑडिट कर दो, तो नया चार्टर्ड अकाउंटेंट का दिमाग खराब हो गया कि ये ऑडिट मैं कैसे करूं, क्योंकि रेजिग्नेशन 30 सितंबर के पहले किया हो और मेरा अपॉइंटमेंट 30 सितंबर के पहले हुआ हो तो मैं ये ऑडिट करूं। अभी बीच सीजन में पिछले साल का ऑडिट में कैसे करूंगा, प्रेडिसेसर रिटायर हुआ हो तो समझ में आता है, प्रेडिसेसर ने रिजाइन कर दिया। कंपनी कह रही है हमें तो भैया लास्ट डेट आ रही है रिटर्न की, ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए, हमने तुम्हारा अपॉइंटमेंट किया तुम करके दो। नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा मैं कैसे करके दूं, ये तो प्रेडिसेसर ने किया हुआ होना चाहिए। प्रेडिसेसर कह रहा मैं तो एडीटी 3 फाइल कर चुका, मैं थोड़ी करने वाला हूँ ऑडिट वॉडिट। अब भाई साहब आज तक वो मैटर सॉल्व नहीं हो पाया है। कंपनी कह रही है
तुम दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट की वजह से हम मरे। उसने ऑडिट नहीं किया, रेजिग्नेशन देके चला गया। 30 सितंबर के बाद का रेजिग्नेशन देता है और 30 सितंबर के बाद का एडीटी 3 फाइल करता है। ऑफिशियली उसने रिजाइन किया 30 सितंबर के बाद। अब जो बैलेंस शीट साइन होनी है 30 सितंबर की वाली, वो तो उसी ने साइन करनी है क्योंकि उसका रिटायरमेंट ही बाद में हुआ है। नया ऑडिटर उसको साइन नहीं कर सकता, पुराना साइन कर नहीं रहा है। नए ऑडिटर पे गाज ये गिर रही है कि भाई तूने अपॉइंटमेंट लेते समय ये क्यों नहीं देखा कि सेक्शन 139 और 140 फॉलो हुए कि नहीं हुए। अब वो कंपनी दोनों के खिलाफ शिकायत करने जा रही है इंस्टीट्यूट में कि नया ऑडिटर ऑडिट क्यों नहीं कर रहा है और पुराना ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दे दिया है और केयरलेसली हमारा ऑडिट ही नहीं हुआ है। अब वो तीनों सिर्फ उठोबोल करेंगे जा करके आईसीआई। इसको कहते हैं कैजुअल अप्रोच, अपॉइंटमेंट लेने की कैजुअल अप्रोच। दिस इज समथिंग वेरी problematic thing. One has to take care about 139 and 140 of the Companies Act. If it is not considered, it will be a misconduct under clause number 8 and 9 of the part first of the first schedule. So, यहाँ पर मैं आपको प्रूव कर रहा हूं कि मिसकंडक्ट जो है वो सिर्फ 3 कारणों से होता है। या तो ग्रीड के कारण होता है, या तो कैजुअल अप्रोच के कारण होता है, या तो इरेशनल डिसीजन के कारण होता है, और या तो तीनों है। नए ऑडिटर को अपॉइंटमेंट लेने की इतनी क्या जल्दी थी कि बिना देखे अपॉइंटमेंट ले लिया। ये कैजुअल अप्रोच तो अपनी जगह है, ग्रीड भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है, एंड दैट इज नॉट डन। ये बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। लेट्स हैव, आपको ताली बजाने में मजबूर कर देगा भाई साहब ये केस। दिस इज समथिंग मतलब फिनोमिनल। मतलब मैं कहता हूँ वो निर्मला ताई जो वहां चिल्ला रही थी ना, वो बहुत कम चिल्ला रही। हमारे कर्म आप देखो, एक से एक मतलब निकाल निकाल के दिए हमने, और ये सारे केसेस आपको डिसिप्लिनरी कमेटी की साइट पे मिल जाए। दिल्ली के एक ऑफिस ने इंस्टीट्यूट को शिकायत की कि ये एक फर्म के कारण हमारा टेंडर 2 बार से रुका हुआ है। इंस्टीट्यूट ने पूछा क्या हुआ, बोलते हैं यार हमने पहला टेंडर इशू किया और हमने कहा कि बिड करो, तो ये फर्म 1 रुपए पे बिड कर दिया। अब वो 1 रुपए पे बिड कर दिया तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाए कि 1 रुपए पे कौन बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करता है। तो हमने उस टेंडर को निरस्त कर दिया कि साहब 1 रुपया तो नहीं हो पाएगा। हमने रीटेंडरिंग की और ये महान फर्म रीटेंडरिंग में 1 पैसा कोट कर रही है, पहले 1 रुपया कोट किया है। ये बहुत रियल केस है। आप मतलब आप ये बिल्कुल मत समझना कि मैं आपको कोई स्टोरी सुना रहा हूँ। 2018 का केस है, कोई बहुत पुराना केस भी नहीं है। आप 2018 में इमेजिन कीजिए कि दिल्ली की एक फर्म पहले एक टेंडर भरती है 1 रुपए के लिए। नाम मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं नाम देना नहीं चाहता, नाम तो साइट पे सबके अवेलेबल, पर मतलब नहीं है। अपने को तो मेन बात समझनी है कि हो क्या रहा है। 1 रुपए पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे टेंडर देते हो और उसके बाद अगली बार जब टेंडर आता है तो 1 पैसे भी देते हो। इंस्टीट्यूट ने इनिशिएट कर दी इंक्वायरी, बोले भाई साहब ये बता दो 1 रुपए में क्या क्वालिटी दोगे आप। चलो 1 रुपया 10 पैसा जो भी आप ये कोट कर रहे हो 1 पैसा, इस पर आप क्या क्वालिटी दोगे। 1 रुपये का तो वो पन्ना आ जाएगा जिसके ऊपर आपको प्रिंट आउट निकलेगी, बाकी मेहनत के पैसे कहाँ है। सर रिस्पोंडेंट ने आर्ग्यू क्या किया, वो और महान है। बोलते हैं we have quoted such lower fees because we need to have an exposure of such audit at any cost to raise our skill set। भाई हमने आज तक ये काम नहीं किया था, तो हमारी फर्म को इस काम के अनुभव की जरूरत थी, तो अनुभव लेने के लिए हमने 10 पैसे, हमको तो ये काम चाहिए था। Now the allegation from that particular authority is that firm has tried to interrupt the bidding process। ये bidding process interrupt ही करना चाहते थे क्योंकि इनको bidding से हमने बाहर कर दिया था।
क्योंकि पिछली बार भी इनकी बिडिंग करके ऐसे किए थे, हमने बाहर किया तो अब ये वापस आ गए। पार्टनर्स को गिल्टी माना गया अंडर क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। बिल्कुल गिल्टी माना गया क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 4 का क्लॉज 2 यानी ब्रिंगिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन, अदर मिसकंडक्ट के अंदर इनको दोषी माना गया और उसके बाद इनको सजा दी गई। जब ऐसे, और ये एक केस नहीं है, मैंने बोला आपको एक साल में ऐसे 243 केस हमने सॉल्व किए हैं डीसी ने, और 200 से ज्यादा किए हैं बीओडी ने। तो करीब करीब 400 केसेस अगर आपके सामने ऐसे आएंगे तो ये तो पकड़ में आए, ये तो कंप्लेन हुई है। अभी आपको रियल फिगर मालूम नहीं है, ना मुझे मालूम है कि रियली में क्या हो रहा हो। ये तो कंप्लेनेंट, और ये तो कंप्लेंट रिसीव हुई है, इनके अगेंस्ट में इंक्वायरी इनिशिएट हुई। जब 400 केसेस के अगेंस्ट में कंप्लेंट की बात कर रहा हूं तो अनकंप्लेंटेड केसेस कितने होंगे, वी कैन नॉट इमेजिन। तो जो लोग चिल्ला रहे हैं कि इनसे अधिकार छीनो, ये सही काम नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने ऑफिस में देखते हैं कि यार हम तो सही काम कर रहे हैं, फिर लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। हमारे सही काम करने से कुछ नहीं होगा ना सर, कलेक्टिवली हम सबको सही काम करना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल कलेक्टिवली सही काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेट्स सी दिस वंडरफुल केस ऑफ कोलकाता। फेमस फिल्म स्टार इमरान हाशमी को डिमांड नोटिस रिसीव हुआ relating to various assessment years as the predecessor is not taking proper care of audit and return। इमरान हाशमी परेशान होकर एक चार्टर अकाउंटेंट के पास पहुंचे कि यार भाई साहब, मैं ये चार्टर अकाउंटेंट से बड़ा परेशान हूँ, मुझे 1.44 करोड़ रुपीस की डिमांड आ गई है, और ये डिमांड सिर्फ इसलिए आई है कि चार्टर अकाउंटेंट केयरलेस। ऐसा अमूमन होता है कि एक क्लाइंट हमारे पास आता है और बोलता है साहब मैं पिछले चार्टर अकाउंट से बैंकर परेशान। न्यू ऑडिटर ने चार्ज ले लिया, प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट नहीं किया, दो ही ट्राइड टू एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन इन इनफॉर्मल वे many a times, but the complainant did not give response to the predecessor as he was so careless and client has every right to select this audit। मैंने कई बार फोन लगाने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया, एसएमएस किया, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने इनका ऑडिट ले लिया। और क्लाइंट इतना परेशान, और क्लाइंट ने भी लिख के दे दिया हाँ मैं बहुत परेशान हूं। अब क्या मुझे ये बताइए कि क्लाइंट ने लिख के दे दिया कि मैं बहुत परेशान, प्रीवियस ऑडिटर सही नहीं था, तो क्या इससे नए ऑडिटर को ये राइट मिल जाता है कि वो बिना एनओसी के प्रूफ के ऑडिट ले ले। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का ओपिनियन था, माना कि आपका इंटेंशन जो था वो क्लाइंट पोच करने का नहीं था, लेकिन कम्युनिकेशन टू द प्रेडिसेसर थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, रजिस्टर्ड पोस्ट ही था उस समय, वो तो मिसिंग है, इसलिए गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना ही जाएगा। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये मेन मिसकंडक्ट्स के अंदर आ रही। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, नाउ द केस इज फ्रॉम नागपुर। अनदर केस, द चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट्स ऑफ द कंप्लेनेंट मेंटेन कर रहे थे और ऑडिट कर रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म। ये क्लाइंट कह रहा है मैंने साहब फुल फीस दे दी, even after the full payment of fees he refuses to complete the work and file the income tax return। ना ये आदमी फीस पूरी दे दी, फिर भी ये आदमी मेरा काम नहीं कर। Respondent firm was in possession of all original document and refused to hand over the same। Further, on seeking for payment against the work done for the interior of new office of the firm, the complainant was abused and threatened। The password of the income tax account was also changed by him without the knowledge of complainant, and the respondent refused to accept the payment made by check। कई बार हम अपनी शैली में ही झगड़ा करते थे,
ये जानते बूझते हुए कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हमसे एक बहुत ही मर्यादित कहना चाहिए आचरण की अपेक्षा है, हम ऐसा आचरण कर देते हैं जो एक आम आदमी करता, और हम फंस जाते। अब हुआ ये था कि इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस का इंटीरियर किया था इसी के एक क्लाइंट ने, और उसने इंटीरियर सेटिस्फैक्टरीली नहीं किया। क्लाइंट का पेमेंट हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रोक लिया, तो क्लाइंट ने इनकी फीस रोकी। अब आप देखिए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के डील करने के तरीके को देखिए। मेरे क्लाइंट से मैंने ऑफिस बनवाया, मुझे उस क्लाइंट को पैसे देने, मुझे ऑफिस में किया हुआ काम सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, मैंने उसे पैसे नहीं दिए, उसने मुझे फीस नहीं दी, मैंने उसकी बुक्स रख ली, वो मांग रहा है बुक्स, मैं बुक्स नहीं दे रहा। वो कह रहा है सर आप अपने पैसे रख लो, मुझे बुक्स दे रहा हूं, अब मैं चेक नहीं ले रहा हूं। वो कह रहा है सर चलो कुछ मत करो, मेरे इंटीरियर के पैसे माफ कर दो, चलो जाने दो, मन दे दो, आप तो मेरे को मेरी फाइल दे दो, मैं वो भी नहीं दे रहा हूँ। क्यों? मेरा ये कहना है कि अब मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा, इसने मेरे साथ पंगा क्यों लिया, मैं इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये अदना सा क्लाइंट, ये मेरे को चलाएगा। अब ये जो आपने अंदर ब्लोटेड ईगो ले लिया, उस ब्लोटेड ईगो का कितना बड़ा इम्पैक्ट इस फॉर्म पे है वो भी आप देखिए। पहली बात तो आपने क्लाइंट के साथ कमर्शियल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश, क्योंकि आपने उस क्लाइंट जिसका आप ऑडिट करते हो उसी से आपने इंटीरियर का वर्क करवा लिया, इट्स वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी। आपने खुद कमर्शियल रिलेशनशिप उसके साथ एस्टेब्लिश कर। दूसरी बात, आपने उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे लीन रख लिया, जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 3 साल पहले डिक्लेयर कर चुका है that chartered accountant cannot exercise lien over the books of accounts even if no fees is received। तो दूसरा मिसकंडक्ट आपने यहां कर दी। पहला तो उसके साथ बिजनेस कमर्शियल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर ली, दूसरा आपने उसके लीन रख लिया, और तीसरी बात इस ब्लोटेड ईगो के चक्कर में आपने उसका इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भरा, यानी आपने प्रोफेशनल ड्यूटीज को भी कंप्लाई नहीं किया। अब आप प्रोफेशनल ड्यूटी को कंप्लाई नहीं कर रहे हो, आप क्लाइंट के साथ कमर्शियल रिलेशनशिप रख रहे हो, और आप लीन भी रख रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। तीन मिसकंडक्ट अगर आपके साथ एक साथ होंगे, देन डेफिनेटली गोइंग टू बी एक्शन अगेंस्ट द मेंबर। सो अगेन मैं यहाँ बोलूंगा कि क्या जरूरत थी, ग्रीड वाली तो कोई बात नहीं थी यहाँ। चलो दूसरी बात पे आऊं कि कैजुअल अप्रोच थी, थोड़ी बहुत कैजुअल अप्रोच मान सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे इरेशनलिटी को सबसे बड़ा कल्प्रिट मानूंगा। आपका विवेक कहाँ गया यार? आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो इतने बड़े, आप क्लाइंट के साथ इस तरीके से उलझ रहे हो कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो यू शुड नॉट टीच अ लेसन। वी आर नॉट समबडी टू टीच लेसन ना। प्रोफेशनल रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ, ठीक है, जब तक चल रहा है चल रहा है, नहीं चल रहा नहीं चल रहा, काम खत्म करें। सो वो इरेशनल डिसीजन जो लिए गए, चाहे वो फिर उस क्लाइंट से ऑफिस फर्नीचर बनवाने का हो या उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रोक लेने का हो, दिस ऑल इज नॉट डन। 2016, ये तो हम सब ने व्हाट्सएप पे क्लिप भी देखा था। As per sting operation carried out by News India 18 channel, published and aired on 17th November 2016। इस एक क्लिप ने हमको हमारे प्राइम मिनिस्टर से 1 जुलाई के दिन जो आशीर्वचन सुनवाए थे, वो उसका कारण ये क्लिप था। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कन्वर्सेशन में बोला कि मैं आपकी काली मनी को सफेद कर दूंगा जन धन योजना के थ्रू।
accounts and gold to convert old high denomination currency notes on commission basis. ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया. The manner in which the conversation had took place, it was very clear that respondent was advising the person about the various illegal means to convert the black money into white. Now tell me, if this kind of things are coming to the profession, they are giving a really big dent to our profession. And when it gives big dent to our profession, it will be treated as misconduct, and he had been punished. बंदे को पनिशमेंट भी मिला है. पनिशमेंट भी मैंने यहाँ लिखे नहीं, क्योंकि क्या है, पनिशमेंट अगर मैं यहाँ लिख दूंगा तो आप और मैं इस बात में उलझ जाएंगे कि यार ये पनिशमेंट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था या थोड़ा सा कम होना चाहिए था. इम्पोर्टेंट ज्यादा या कम की नहीं है, इम्पोर्टेंट पनिशमेंट की. इम्पोर्टेंट ये है कि आपके प्रोफेशनल करियर पे एक स्टिग्मा लगा हुआ है. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी. अच्छा, ये जो सोच है इस पर भी थोड़ा सा रिवर्क करने की जरूरत. थोड़े दिन पहले ही हमारे किसी मेंबर ने 500 से ऊपर टैक्स ऑडिट साइन कर दिए थे, जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने उसको 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी. अब हमारे मेंबर्स बजाय इस बात की भर्त्सना करने के कि यार ये मेंबर को बायकॉट कर दो सोसाइटी से, या इस मेंबर के अगेंस्ट में हम सब लोग कोई एक्शन ले, 5 लाख रुपए की पेनल्टी अपनी जगह है, लेकिन इसका सोशल बायकॉट जरूरी है. भाई कुछ तो आपको ऐसा करना चाहिए कि सामने वाले को भी कुछ लगे. उसकी बजाय हम व्हाट्सएप पे क्या बातें कर रहे हैं वो सुनिए. हम बातें कर रहे हैं 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई. 5 लाख डिवाइडेड बाय 500, 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई. और 500 टैक्स ऑडिट में एक टैक्स ऑडिट की फीस बोल 10,000 रुपये. तो भाई अगर 500 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कर दिया जाए तो उसने जितना कमाया है उसके रिस्पेक्ट में तो पेनल्टी छोटी सी है. तो चलो अपन भी कर लेते हैं. ये कौन सा तरीका होता है डिस्कशन का? मजाक अपनी जगह है सर, लेकिन अपनी इस मजाक से अगर कोई यंगस्टर वाकई में इन्फ्लुएंस हो गया, यार क्या होता है, कर लेते. 600 टैक्स ऑडिट कर दो, क्या होगा, पेनल्टी तो लगेगी, दे देंगे पेनल्टी. सर ये सोच समझ से बाहर. मतलब आपके प्रोफेशनल कैरियर पर लगा हुआ दाग आपको उतना प्रभावित नहीं कर रहा है जितना आपको वो मटेरियलिस्टिक अमाउंट कर रहा है. दिस इज समथिंग डेंजरस फॉर अ सोसाइटी कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. इफ दिस काइंड ऑफ इमोशंस आर welcome, I don't think there is something remained for us in the profession. This has to be stopped at every front. Even if this kind of post comes in WhatsApp groups, we all should condemn such kind of post, because this is not suited to a gesture of a chartered accountant. That is very important. In 2019 एक जोड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पहुंचा और उन्होंने कहा हमारी यही शादी हो रही. चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा बहुत अच्छी बात. उन्होंने कहा सब शादी हो रही है तो ये एक अच्छा मौका है कि हम काली मनी को सफेद कर लें. उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात. जितने भी गेस्ट्स हैं उनकी लिस्ट लो और उनके आगे 500, 1000, 2,000 रुपए के लिफाफे ले लो. आपको कैश रिसीव होगा, गिफ्ट में कैश रिसीव होगा, वेरियस अमाउंट्स ऑफ मनी, वेरियस पर्सन इन नेम ऑफ पर्सन इन हिज वाइफ. दे हैव created humongous capital on account of marriage. Income tax officer has scrutinized the case and he issued notice to all those persons who had given gifts to this couple. And when they started denying that, they catch hold the client that भैया असेसी ये तो सब मना कर रहे हैं, सो काइंडली बताओ कि क्या हुआ. असेसी का सिर्फ एक जवाब होता है भाई साहब,
सर हम तो इनकम टैक्स का आई भी नहीं जानते, जो भी किया ना ये इन्होंने ही किया है। सी आई एम IITian, शी इज ऑल्सो IITian, हम तो दोनों ही IITian है, ये भी IITian है, वो भी IITian है, तो हमने तो नहीं किया। हाँ, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब है ना हमारे, ये सारा किया धरा गणित जो है इन्हीं का है। भाई साहब अब हमारे खिलाफ सीधे जाएंगे वहां का DC में, और DC में जाके कंप्लेंट मार देंगे, और वो इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, तुम लिख के दे दो। भाई साहब वो लिख के क्या, सील सिक्के साइन लगा के सब दे देंगे, वो कि किया ही इन्होंने, हमने तो कुछ भी नहीं किया। और क्लाइंट तो अपने आप को सबसे पहले बचाता है। Now why this assignment has to be taken care of? क्या मिल गया होगा इस असाइनमेंट में बताइए? इतनी कैपिटल बनाने की ऐसी क्या फीस मिल गई होगी जिसके लिए इतनी बड़ी रिस्क ली गई और इतना बड़ा प्रोफेशनल स्टिग्मा अपने ऊपर ले लिया गया मिसकंडक्ट का, जो कहीं किसी तौर पर जरूरी था ही नहीं। लीजिए सर, हमारे वो कर्म जिनके कारण कारो 2020 हमारे लिए एक जबरदस्त रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बन गई। भोपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब थे, उन्होंने बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी बनाई और सबमिट की एक बैंक को, और एक और बैलेंस शीट बनाई जो इनकम टैक्स को दी, और दोनों सेट्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो उन्होंने ऑडिट किए और साइन की। वाओ, 2 sets of books of accounts have been prepared, 2 sets of financial statement have been prepared, both balance sheets have been signed by the chartered accountant as a statutory auditor. One financial statement have been filed with bank, another financial statement audited will have been filed with assessing officer. He had submitted forged and fabricated document with an intention to avail and enhance the credit facility from bank. जितना ज्यादा पाप ये हुआ है, इसके रिपरकेशन जो आए वो कारों में आ गए। 5 करोड़ रुपए से ऊपर की लिमिट वाली कंपनी में मुझे और आपको ये लिखकर देना है कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डेटा जो बैंक को सबमिट किया है क्लाइंट कंपनी ने, वो डेटा बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होता है। और माइंड इट वेरी केयरफुली, कारो 2020 आने के बाद भूल जाइए कि 1 सितंबर के बाद आई हुई किसी भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स का आप ऑडिट कर पाएंगे, क्योंकि आप कारो रिपोर्ट ही पूरी नहीं कर पाएंगे। कारो रिपोर्ट की एक्सेल शीट्स भरते भरते ही टाइम निकल जाता है कंपनी की। सो माइंड इट वेरी केयरफुली, स्मॉल कंपनी को छोड़कर बाकी जितनी भी कंपनीज हमारे पास हैं, अगर वो एग्जम्प्टेड नहीं है कारो से, तो उनकी तैयारी आज ही से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है अब कि लास्ट डे पर 2 पन्ने कारों के निकाल के दे दें, क्योंकि अब वो 2 पन्ने कारों के नहीं रह गए, अब वो 3 पन्ने कारों के हैं, और वो 3 पेजेस जो हैं उनके अंदर अलग अलग कंपनी की डिटेल्स अलग अलग आएंगी और वो देनी पड़ेंगी, और वो 52 पॉइंट्स हैं, दे आर नॉट जस्ट 21 पॉइंट्स। If someone has to report on 52 odd points, we need to prepare ourselves from day one. It will not be a matter कि हम बात करें कि साहब हो जाएगा हो जाएगा। अब लास्ट मिनट पे कुछ नहीं होगा, अपने क्लाइंट को भी भेज दें। और कारो के, मैं तो कहता हूं, मैं तो अपने क्लाइंट्स के सभी क्या कारो रिपोर्ट की डिटेल्ड लिस्ट भेज दी है कि भाई साहब मेरा स्कोप इतना बढ़ चुका है, कारो 16 में मेरा स्कोप कम था, इसके अंदर मुझे 52 पॉइंट पे रिपोर्ट करने हैं, फीस बढ़ाकर दोगे तो मैं ऑडिट करूंगा, नहीं तो
आप नए ऑडिटर की व्यवस्था कर लें। मैं रेजिग्नेशन आज ही देने को तैयार, नहीं हो पाएगा, ये हमको करना ही पड़ेगा। आई विल रिजाइन टुडे इटसेल्फ, नहीं हो पाएगा। इतना सारा काम नहीं कर सकता भाई साहब मैं फ्री, नहीं हो पाएगा। वी हैव टू टेक स्टैंड as we took in case of bank audit this time. We have to take stand this time for this also, क्योंकि एक्सपेक्टेशन गैप बहुत बड़ा है। और वो जो कारो 2020 आई है वो तो जान निकालनी है। अभी बुक डेट्स के सारे अकाउंट, सारे वैल्यू अपने को सर्टिफाई करके देनी है। आपको जो स्टॉक स्टेटमेंट उसने 4 क्वार्टर के फाइल किए हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली करवा के देना है। So when we are talking about telling all the things in such a manner, how can we complete the audit in such a hurry? Possible ही नहीं। अभी से आप अपने आर्टिकल्स जितने भी आपके पास इस वक्त हैं, बाकी तो फाइनल वाले तो गए हैं अभी एग्जाम में, एग्जाम के बाद आने के बाद सबसे पहले उन आर्टिकल्स को बोल दीजिए कि भैया 1.5 महीना है, इसमें ही ऑडिट खत्म करना है, इसके बाद कुछ नहीं होना। चाहे साइट क्रैश हो जाए, डेट तो बढ़ना ही नहीं है, तो बात ही खत्म होगी। तो अब आप ये तैयारी अभी से चालू करें, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम। नाउ दिस पर्टिकुलर केस को अगर मैं बात करूं तो ये तो क्लियर 420 का ही केस है, जिसके अंदर आपने 2 सेट्स ऑफ अकाउंट्स बनवा कर, 2 बैलेंस शीट बनवा कर, 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनवा कर, 2 ऑडिट रिपोर्ट दे दी। एक रिपोर्ट एक ही एंटिटी की, एक आपने दे दी बैंक में, दूसरी आपने दे दी इनकम टैक्स में। तो ये तो दिस इज नॉट डन। लीजिए सर, टुट्टी कोड़ी से केस आपके लिए है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी यात्रा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यूपी, एमपी, राजस्थान के ही केस लेंगे, हम वेस्ट बंगाल के केस लेंगे। आइए ना, साउथ इंडिया में भी चलते हैं, आप टेंशन ना लो। When I went to Chennai for taking a seminar on this particular code of ethics, I was not expecting that in South India also the same practice which we have here in Mufassil cities, I might observe there, but I found that they are one step ahead than us. Look at this. Chartered accountant issued 97 projection statement for certain individual without verifying the basic documents and on the basis of which bank had extended the loan. ये केस जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं भाई साहब। बैंक मैनेजर गया इस यंगस्टर के पास, क्या जरा सेटिंग कर ले, लोन बांटेंगे। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तेरे से बनेंगे, तू प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना, फिगर्स बना के देना, साइन करके देना, रिपोर्ट में दो। इस यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को यह बताया ही नहीं गया कि ये एक पॉलिटिशियन है जिनकी इस बैंक में मैनेजमेंट पर पकड़ है और वो इस बैंक से लोन उठाना चाहते हैं। उन कॉर्पोरेटर भाई साहब ने या पॉलिटिशियन भाई साहब ने 97 अपने लोगों के नाम उस बैंक से लोन उठाए और वो बंडल ऑफ प्रोजेक्शंस जो है इस भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दिया गया और इस भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी उन सारे 97 प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट पर सर्टिफाई करके साइन कर दिया। बाद में बैंक के उस मैनेजर के अगेंस्ट में जब वो एनपीए हुए तो मैनेजर के अगेंस्ट में इंक्वायरी हुई, फाइलें उठा के देखी गई। फाइलों में ये पता ही नहीं था कि इनके बिजनेस का सोर्स क्या है और रिपेमेंट ऑफ लोन को कैसे करें। सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगा हुआ था। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने ऑफिस में, अपने केबिन में साफ तौर पर एक बनाकर स्टेटमेंट लगा दें कि हमारे यहाँ बैंक से संबंधित कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता। क्योंकि ये बैंक मैनेजर आजकल जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं,
हद दर्जे के मूर्खतापूर्ण सर्टिफिकेट ये मांग। मैं आपको एक के बाद एक एग्जांपल दे सकता हूं, शायद आपके जोधपुर में भी मांग रहे। हमारे यहाँ पर एक सर्टिफिकेट आया और उसमें लिखा था चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई कर रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो वैल्यू चल रही है एसेट की, उनकी मार्केट वैल्यू आज की तारीख में ये है, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के उस पर साइन करूं। मैंने कहा भाई साहब, मैं बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो फिगर है उनको तो मैं साइन करके आप जब बोलो तब दे दूं, लेकिन आप जो ये वैल्यूएशन कर रहे हो इस पर मैं साइन नहीं कर सकता। क्लाइंट कहता है हम आपसे कौन सा सर्टिफाई करा रहे हैं, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू तो है। मैंने कहा सरकार, मैं एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू पे साइन नहीं कर सकता। बोलते हैं आप नहीं करोगे तो मैं दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा लूंगा। मैंने कहा आप एक काम करना, बस उस दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये बोल देना कि असीम त्रिवेदी ने रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं साइन कर रहे। उसके बाद अगर वो साइन कर दे तो आप करवा लो। ही सेड आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप दूसरों को फोन लगाओगे। मैंने कहा मैं दूसरों को फोन नहीं लगाऊंगा, उनको सब ये बोल देना कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं कर। उसके बाद आप जिससे इंदौर में करवाना है करवा लो। नहीं होगा सर, मैं क्यों साइन करूंगा आपके एस्टिमेटेड वैल्यूएशन पे। एम आई वैल्यूअर, और अगर वैल्यूअर भी हूं मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का, तो मैं तो सिक्योरिटी के वैल्यूएशन के लिए वैल्यूअर हूं। मैं टेंजिबल एसेट की वैल्यूएशन का वैल्यूएशन कर ही नहीं सकता मैं। तो यार बैंक हमको लोन नहीं देगा, हाँ तो नहीं देगा। यार आपने हमारा काम अटका दिया, मैंने नहीं अटकाया, बैंक ने अटकाया। नहीं, बैंक वाला तो आप पे ढोल रहा है, बैंक वाला गलत सर्टिफिकेट मांग रहा है, मैं गलत सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। ये तो एक सर्टिफिकेट है। अगला सर्टिफिकेट बैंक वाला मुझसे मांगता है, बोलता है सर साइन कर दीजिए इस सर्टिफिकेट पे कि ये जो आपका क्लाइंट है जिसको आप जानते हो, इसने आपके सामने अंडरटेकिंग दी है कि ये जो लोन ये लेके जा रहा है, इस लोन को ये उसी पर्पस के अंदर खर्च करेगा जिस पर्पस के लिए ये लेके जा रहा है। ओ भाई साहब, मैं कौन होता हूँ ये साइन करने वाला कि ये जिस पर्पस के लिए लेके जा रहा है उस पर्पस के लिए करेगा। हु एम आई टू साइन दिस? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठा के ले आते हैं 1 2 3 4 5 साल के, और बोलते हैं इसको लिख दो कि दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। भाई साहब मैं कैसे लिख दूंगा ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे? मेरा स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट SAE 3400 मुझे बोल रहा है कि जब भी प्रोजेक्शन दिए जाए कृपा करके प्रोजेक्शंस में ये देखें कि प्रोजेक्शंस जो दिए गए हैं वो बेस ईयर की फिगर पे दिए गए हैं, और जो मेथड और अजम्पशन है वो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में सही है। आपको ये लिखना है कि इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस द प्रोजेक्ट द मेथड यूज्ड आर ओके। आप प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन ही नहीं कर सकते हो। क्लॉज नंबर 3 ऑफ द पार्ट फर्स्ट ऑफ द सेकंड शेड्यूल सीधा अट्रैक्ट होता है वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। हाउ कैन यू वाउच एन एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट? अभी वो बैंक मैनेजर फिर आ जाता है, बोले साहब ये 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न सर्टिफाई कर दो। ओ भाई मैं कौन, मैं क्यों सर्टिफाई करूं इसके इनकम टैक्स रिटर्न? आप कैसे ही तो भरे, भाई मेरे यहाँ से भरे हैं, मुझसे क्यों साइन करा रहे हो? बोले सर लिखो ना सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। ओ भाई साहब, भारत देश में सर्टिफाइड ट्रू कॉपी करने के अधिकार गजेटेड ऑफिसर को है, आप कहाँ मेरे पास आ गए? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कि कृपया गजेटेड ऑफिसर बन के सर्टिफाइड ट्रू कॉपी साइन ना करें, ये आपका काम नहीं है। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आपको करना ही नहीं। आप कौन होते हो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी करने वाले? आप सिर्फ अपनी बैलेंस शीट की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी दे सकते हो। यू कैन नॉट गिव सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। वो बैंक मैनेजर का आदमी तो भाई साहब, बैंक मैनेजर ने तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को बेस्ट आदमी बना रखा है। उसको कुछ भी करना होता है वो क्लाइंट को बोल देता है जाओ CA के साइन करवा लो तो मैं अपनी फाइल क्लीन करूं। तो सर हम यहाँ कोई वॉशिंग मशीन है जो सबके पाप धोएं? दिस इज नॉट डन। ये वाला केस टूटी कुड़ी का वही था। 97 प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट आप सर्टिफाई करके दे रहे हो, यू हैव फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट।
लो जी, चर्च में ही गड़बड़ कर दी, सोसाइटी में ही गड़बड़ कर दी। मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप अपने अपने समाज की जो भी पोस्ट लेते हैं, ये एक तो बहुत खतरनाक चीज। हम लोग क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं तो हमारे जो समाज वाले होते हैं वो हमारे पास जाके बोलते हैं यार आप ट्रेजरर बन जाओ, और नहीं तो आप एक काम करो, आप हमारे ऑडिटर बन जाओ, या आप जो है आपको हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना देते हैं। सर अब आप देखिए क्या हुआ। दो रिस्पोंडेंट जो थे, the two respondents were partners and also has been practicing in their individual names. Respondent number 1 had been appointed to be treasurer for a period of 2 years, 7 to 9. Previously, he had worked as a treasurer of a complainant church for 2003-5 as well. वो 2003 से 2005 तक ट्रस्ट का जो कंप्लेन चर्च का ट्रेजरर रहा, और फिर 2007 से 2009 में फिर वो क्या रहा, ट्रेजरर रहा। Respondent number 2 signed the balance sheet as audit from 2003-4 to 10-11, including the previous when the respondent 1 was signing as a treasurer in his personal name. Their appointment was on honorary basis, hence no appointment letter was issued for them. Furthermore, the respondent had mentioned that pastor of the church was aware that both the respondent were the partner in the CA firm and neither of the respondent declared their partnership to the church member orally or in writing. Loss. समाज में क्या होता है सर, जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तब तो सब कुछ सही चल रहा होता है, और जिस दिन समाज वालों के ईगो हर्ट हो जाते हैं उस दिन वो बारीक बारीक चीजें निकाल कर डालते हैं। अब देखिए ये दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट बेचारे, बेचारे बोलूंगा मैं इनको, ये दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट बेचारे ऑनररी बेसिस पे ऑडिटर थे और ऑनररी बेसिस पे ट्रेजरर थे। 1 रुपया इनको चर्च से नहीं मिला और इन्होंने लिया भी नहीं होगा, आई कैन बेट। ये दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट जो चर्च में थे, इन दोनों ने कोई पैसा नहीं लिया, इन दोनों ने कोई रेम्यूनरेशन नहीं लिया। एक ट्रेजरर की तरह काम कर रहा था, एक ऑडिटर की तरह काम कर रहा था। सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई कि ट्रेजरर इज ऑफिसर ऑफ अ चर्च एंड उस चर्च का ऑडिट करने के लिए ऑफिसर का पार्टनर ही ऑडिटर बनता। अब ये दोनों ने धार्मिक भावनाओं में आके एक बन गया ट्रेजरर और दूसरा बन गया ऑडिटर। अब जिस दिन तक सब कुछ सही चला उस दिन तक तो किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। जिस दिन चर्च में कोई फ्रॉड पकड़ में आया होगा, सबसे पहली उंगली उठी होगी ऑडिटर के ऊपर कि भाई ऑडिटर तुम कौन? इसने बोला मैं। बाद में बोले वो ट्रेजरर कौन? सर ये। और बाद में चर्च के पादरियों को पता चला कि ये 2 लोग जिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हमने एक को ट्रेजरर बना रखा और एक को ऑडिटर बना रखा है, ये दोनों तो पार्टनर है। तो अब बाकी चर्च के ट्रस्टीज ने ये साबित करने की कोशिश की कि इन दोनों ने मिलकर ही फ्रॉड किया। अब आप बताइए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी चर्च में, और चर्च में इतना कितना पैसा होता है जो उस चर्च के अंदर वो दोनों मिलके फ्रॉड करेंगे, और वो भी इस पोजीशन में कि एक ट्रेजरर बन जाएगा और दूसरा ऑडिटर बन जाएगा। आप मुझे बताइए, सपने में भी नहीं सोच सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट कि वो जिस चर्च के अंदर ट्रस्टी है उसके अंदर जाकर वो घपला करेगा, और घपला करने का तरीका क्या चुनेगा कि सब एक तो बंदा ट्रेजरर रहेगा और दूसरा बंदा उसका ऑडिटर रहेगा। इतनी बड़ी केयरलेसनेस कोई नहीं कर सकता। दिस इज प्योर कैजुअल अप्रोच, जिसमें उन्होंने ये सोचा ही नहीं बियॉन्ड देयर रेशनलिटी। They decided to become, one became treasurer and another became auditor. और ये निश्चित तौर पर उनका डिस्कशन हुआ होगा कि तू ट्रेजरर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तू लिखेगा तो ऑडिट करने में कोई टेंशन नहीं, मैं ऑडिट करता हूँ, काम खत्म। एंड अपने को चर्च से कुछ भी नहीं लेना है। दिस pious objective has been gone in drain and they have been accused and they have been punished. So what was that?
Neither it was agreed, nor it was casual approach. It was purely irrational decision taken by these two chartered accountants, which is done, which is not done. Now I am coming to one Mumbai case, which is not discussed here. A Mumbai case is there. I'm just discussing that and closing my talk. This case which I am talking about is not here. Recently it came to our knowledge. SEBI has sent a letter to the chartered accountant auditor that our inspection team, when visited this listed company, found that this listed company has no registered office at the place which is mentioned in the MOA. And after all search, we could able to trace that really there is no registered office of this listed entity. And you are auditing since last 10 years and saying that books of accounts are being maintained as per section 128, and section 128 says that books of accounts should be made at registered office. Kindly explain us, where is the registered office? And this chartered accountant, I'm just telling you, is of 85 years old chartered accountant of Mumbai. He did not respond to SEBI. SEBI has initiated complaint against this member to ICAI. ICAI, when sent a show cause notice to this fellow, to my surprise, what this fellow is suggested is an eye-opener. This fellow responded कि सर मेरी एज 85 years हो चुकी है, मेरे 2 आर्टिकल जो इस लिस्टेड कंपनी के सर्वे सर्वा हैं, उनके कहने पर मैंने आज तक ये बैलेंस शीट साइन की थी. दे वर माय गुड आर्टिकल्स. वो सारा काम करते थे, सिर्फ साइन करवाने मेरे पास आते थे. मुझे ये नहीं मालूम था कि वो इस तरीके की फ्रॉडुलेंट कंपनी को लिस्टेड करवा कर बैठे हैं सेबी. इस एज में मेरा दिल्ली आ पाना संभव नहीं है. मुझे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन में अपीयर नहीं होना है. मैं इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे खिलाफ आपको जो एक्शन लेना हो एक्स पार्टी, वो एक्शन ले लें, मुझे मंजूर. और इसी के कन्वर्सली एक छोटा सा केस इसी मुंबई महानगर के एक यंगस्टर के द्वारा, उस यंगस्टर ने बैंक की बैलेंस शीट में वैल्यूएशन कर डाला, जबकि वो फिक्स्ड एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करती उनकी वैल्यूएशन की रिपोर्ट साइन करके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दे दी. जब अकाउंट एनपीए हुआ, आरबीआई ने कंप्लेंट की, कंप्लेंट पहुंची इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ने उस मेंबर को उठाया और उससे जवाब मांगा. अब आप उसका भी जवाब सुनिए. आपने 85 ईयर के चार्टर्ड अकाउंटेंट का जवाब सुन लिया. अब आप 25 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी जवाब सुनिए. सर, मैंने इसी साल प्रैक्टिस करना शुरू किया है, नया नया प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई कि मैं फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया. धीरे धीरे एक्सपीरियंस से मैं सब सीख जाऊंगा, इस बार मुझे माफ कर दें. ब्लंटली जवाब दे रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट को जवाब ये दे रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ. ये हमारे जवाब की क्वालिटी, जो 85 ईयर के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इंस्टीट्यूट को दिया और जो 25 ईयर के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इंस्टीट्यूट को दिया, इन दोनों के जवाब आपको इथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की साइट पर मिल जाएंगे. अब आप बताइए,
ये तो जवाब पकड़ा रही है भाई जनरेशन। एक ओल्ड जनरेशन है और एक न्यू जनरेशन है। एक बोलता है मैं तो 85 ईयर का हो गया हूँ, आपको जो मेरे साथ करना है कर लो। एक बोलता मैं तो अभी 25 साल का ही हूँ, सीख जाऊंगा धीरे धीरे। अब अगर कोड नहीं आएगा और कोड मैंडेटरी नहीं आएगा तो ऐसे 400-450 केसेस को हर साल हम हैंडल कैसे करेंगे? एंड दिस इज नीड ऑफ द आवर टू इंट्रोस्पेक्ट कि आखिर हमको करना क्या है, बिकॉज नथिंग कैन बी रिपेयर्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। अब जो भी करना है वो फ्यूचरिस्टिक में ही जा करके करना पड़ेगा। सो these are the details, these are the cases through which I have explained the need of code of ethics. I have not explained any of the provisions of code of ethics because we all know those provisions, but I tried to cover that from the whole India, from all parts of India, what are the problems with us and what is the expectation gap which is day by day increasing in this society towards us. ये असंतोष गलत नहीं है. Let me tell you one thing. Administrators are not very happy with us. Be it is RBI, be it is SEBI, be it is MCA, be it is NCLT, be it is Income Tax Department, be it is GST Department. No one is happy with the way we are dealing with our clients. They are consistently feeding the Ministry of Corporate Affairs that your wing, ICAI, is not working properly. I am again saying your wing, ICAI. ICAI is within the aegis of Ministry of Corporate Affairs. इसलिए हम बचे हुए, नहीं तो इतने जो हम देख रहे हैं तरीके जिनसे प्रैक्टिस चल रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन दोनों के बीच की टसल नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का हमारे प्रति जो वो बार बार हमको बोलते हैं आप इम्प्रूवमेंट करो, हम भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट की रफ्तार जो है वो उतनी नहीं हो पा रही है जो नफरा की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर। तो ये जो एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, दैट इज डेंजरस फॉर आवर प्रोफेशन. आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम टॉकिंग ऑन सच अ टॉपिक वेयर आई कैन नॉट गिव यू any kind of such an advice or value addition which is required to serve a client. भी अगर मैं जीएसटी का स्पीकर होता, मैं इनकम टैक्स का स्पीकर होता, मैं कंपनी लॉ का स्पीकर होता, तो मैं आपके क्लाइंट के वैल्यू एडिशन की 4 चीजें आपको बोल के जाता है 2 घंटों में. पर ये हमारे प्रोफेशन की बात है, इसलिए हमको इतने हार्ड वर्ड्स को यूज करना ही पड़ रहा. और सभी अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो फिर कड़वी बातें करने वाला भी कोई चाहिए. सो आई एम हियर. Sorry, I'm sometimes very outspoken and some seniors who are here might have some objection on my style of delivering. I'm really sorry for that if it hurts you. But क्या करें, जो सही बात है, जो कड़वी बात है, वो तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये प्रोफेशन अगली जनरेशन को हम क्या देके जाएंगे, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है. और जिस तरीके से ये काम हो रहे हैं, इस तरीके से तो ये प्रोफेशन जो है अपनी लंबी आयु को प्राप्त करने में असफल रहेगा. सो विद मैं इन छोटे छोटे सेमिनार्स के थ्रू जो पूरे देश में ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है. बस ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो सुधार है ये सब दूर आना चाहिए, और ये नहीं आया ना तो ये बड़ा दिक्कत का काम हो जाएगा. So for that, this is there. I'm thankful to the Jodhpur branch who invited me for this particular topic. For some other topic, I'll come and have face-to-face discussion with Jodhpur branch sometime, if it is company audit or it is Caro or it is
accounting standard, or it is IFRS, or it is Ind AS, I'll come and have a good discussion face to face. PCM is okay. So thank you very much, Jodhpur branch, to invite me. If any queries are there, I can address them. सर स्टिल कोई क्वेरी नहीं है, बट सर जैसे आपने एक्सप्लेन किया है सारे केसेस को वन बाय वन, तो उससे तो ये समझ में आ गया कि अगर छोटे से भी केयरलेस हो गई तो इट मे बी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है वो। और सर डेफिनेटली हम आपको वन टू वन सुनना चाहेंगे, फेस टू फेस सुनना चाहेंगे। बहुत जल्द एक सेमिनार प्लान करेंगे जहां हम आपको इनवाइट करेंगे जोधपुर में आने के लिए। रियली थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, इफ इज देयर एनी क्वेरी प्लीज पोस्ट ऑन चैट बॉक्स so we may ask to sir. Pooja जी को क्वेरी आई क्या चैट बॉक्स में? No problem. नहीं सर। Yeah, there's no point. Now I would like to request CA Pankaj Rathi, Vice Chairman of Jodhpur branch, for official vote of thanks. Over to you, Pankaj. Thank you, Dhaval sir. I, CA Pankaj Rathi, the Vice Chairman of the Jodhpur branch of CIRC of ICAI, on behalf of entire Jodhpur branch, want to thank our today's speaker and respected sir, CA Aseem Trivedi, for giving us your valuable time in your busy schedule and for providing such a wonderful session on the subject Code of Ethics. It was very beneficial session for the members. Hopefully, it will help the member in their professional life. I am also thankful to our chairman, sir, CA Dhaval Kothari, Secretary Ma'am, CA Pooja Dhoot, and entire managing committee of the Jodhpur branch, and the working team of the Jodhpur branch for organizing such a wonderful event. We are also thankful to all the members who attended this webinar and made the VCM successful. Thank you, everyone. Sir, there is a question. There is a question that why the digitized ICAI is not digitizing the NOC process. ICAI is in process of digitizing this through UDIN portal. So within 1 month or two, the NOC will be going to have through the digital through this our UDIN portal. It will be very easy for us to have NOC. So it will be really helpful for each and every members. Yeah. Shall we end the meeting, sir? Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.